بادب و ملاحظہ میں میں فضل امام ملک اپنے گاؤں چوارا میں ہوں۔ رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان یعنی عبادتوں کا مہینہ، مغفرتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، خلافتوں کا مہینہ، پاک مہینہ ہے۔ اور اس مہینے میں قرآن اترا، اس مہینے میں 70 گنا نیکی کا وعدہ اللہ نے کیا، یعنی یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کی بہت فضیلت بتائی ہے۔ اس مہینے میں روزے رکھے جاتے ہیں، روزہ فرض ہے۔ اور پریم چند کے عیدگاہ کہانی کی بات کریں تو ان کی شروعات ہوتی ہے کہ پورے 30 روزے کے بعد عید آئی، یعنی روزے کے بعد عید آتی ہے۔ لیکن اس صرف روزہ کا مطلب ہے کہ اپنے نفس پہ قابو کرنا، اپنے بھوک پہ قابو پانا، اپنی خواہشوں پہ قابو پانا۔ روزہ صرف سہنے کا نام نہیں ہے کہ ہم صرف بھوکے پیاسے رہ گئے، بلکہ نظر کا بھی روزہ ہوتا ہے، غیبت سے بچنا، چغلی سے بچنا، بری چیزوں سے بچنا، جھوٹ سے بچنا۔ اس ماہ کی بہت فضیلت، اور کہا جاتا ہے کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ ثواب 70 گنا زیادہ ملتے وہ عطا کرتے ہیں۔ تو رمضان، اور صرف رمضان صرف اسی وجہ سے، اسی لیے نہیں کہ روزے رکھے جاتے، بلکہ اسی مہینے میں قرآن بھی نازل ہوا۔ اور پھر بہت ساری تاریخی لڑائیاں اس مہینے میں اسلام کی ان کی فتوحات کے لیے لڑی گئی۔ جنگ بدر اسی مہینے میں فتح ہوئے۔ اسپین کی لڑائی، اسپین کو فتح اسلام کے جانبازوں نے اسپین کو فتح کیا، وہ بھی رمضان میں ہی فتح کیا۔ فتح مکہ بھی رمضان میں ہوا۔ تو رمضان ایک بہت مبارک مہینہ ہے، اور جس میں اس کی فضیلتیں بے شمار ہیں۔ اور ایسا کہا جاتا ہے کہ چاند رات کے آخری عشرے میں، فتح راتوں میں، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 راتوں میں لیلۃ القدر ہوتے ہیں۔ اور یہ لیلۃ القدر میں عبادتوں کی رات ہوتی ہے، مغفرت مانگنے کی رات ہوتی ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی رات ہوتی ہے۔ اس روزے کی بہت اہمیت ہے، رمضان کی بہت اہمیت ہے۔ چوارا میں آج ایک چھوٹی سی افطار کی پارٹی ہے، افطار کی دعوت افطار لوگوں کو دیا ہے، کیونکہ روزہ صرف کھانے کا نہیں، کھلانے کا بھی نام ہے۔ ایک دوسرے کو کھلانا، ایک دوسرے کے ساتھ روزہ افطار کرنا بھی ایک سنت میں آتا ہے۔ میں جب شام ہو جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اب تو میرا ڈیوٹی کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، اب تو لکھ لیں۔ ٹھیک ہے، ایک مطلب گناہ لکھنا ہے۔ اور پھر وہ جو ہے منڈے کا دن اور جمعرات میں، 2 دن جو ہے ہفتے میں اوپر لے جا کے پیش کرتے ہیں۔ اور وہ پھر جو ہے اس طرح سے اس دن میں روزہ رکھتے ہیں تاکہ ہم جو ہے ہمارا ایک لڑکا پترکار آپ کی ایریا کا سنیل ہے، اچھا لگا۔ اللہ
हेलो हेलो हाँ गौर कीजिए आप क्या अच्छा जगह नहीं अच्छा जगह इधर अल्लाह इस इफ्तार की दावत को, इफ्तार को, रोज़े को, इबादतों को कबूल करे। और रमज़ान ज़ियाफ़तों का भी महीना है, इबादतों का महीना है, मग़फ़िरत का महीना है, बरकतों का महीना है। एक छोटे से इफ्तार की दावत आज रिहाइश पे दी है, जिसमें गांव के कुछ सरकर्दा लोग, गांव के कुछ सरकर्दा लोग शामिल हैं, ताकि हम एक दूसरे के साथ इफ्तार करें और सवाब हासिल करें। साहब को जो मिलने जा रहा है वो 21,000 रुपया का 36,000 रुपया मतलब 36,000 रुपया जो है ये इनको मिलने जा रहा है। और हाफिज परवेज साहब को मेरा मौजिन जो है हमारे कहाँ हैं, मौजिन साहब को ये 8,000 रुपया, ये कुछ है नहीं है, ये कपड़ा का साथ ये है, और इसके अलावा जो है कपड़ा है, कपड़ा में तो हम लोग को दिया गया है, ये लीजिए आइए हाफिज साहब और आइए आप भी आइए। इसके मेहमान ने बहुत अच्छे अक्सर तरीके से इसको किया है, तो ये कुछ है नहीं था, ये आप हमारे तरफ से जो है इसको रखिएगा, अल्लाह आपको अजर दे। और तमाम लोगों को मतलब जो है कपड़ा भी, इनका कपड़ा भी मतलब जो है कि ये छोटा सा था, अगले साल मतलब जो है आप और अच्छा पढ़ें और अच्छा करें और इसका अजर है। तो हम सबको मुबारकबाद देना चाहेंगे नई भाई को, चूँकि उनके नवासे हैं ये, आपको, आपके भाई, पूरे घर बार को, और काफ़ी अच्छे तरीके से आपने पढ़ाया, आपके जो पढ़ाने का तरीका है काफ़ी ठहराव है और काफ़ी साफ मतलब जो है क्या हाफिज को वैसे इसमें कहीं हम लोग को भी बहुत पसंद आया आपका तरीका पढ़ाने को, हर चीज़ मतलब जो है कैसे क्या है। तो कहीं पे कोई इतने दिन हम तकरीबन 12-13 दिन यहाँ पे हमने पढ़ा, लेकिन कहीं पे इनको लोकमा नहीं पढ़ा, ये बहुत बड़ी बात है। काफ़ी साफ, काफ़ी ठहराव और काफ़ी इत्मीनान के साथ पढ़ा रहे हैं। तो इसी जज्बे को आगे आप जारी रखें, क्योंकि आपका मतलब जो है अभी पहला या दूसरा तरावीज़ है, दूसरा तरावीज़ है, तो आगे और इससे बेहतर करिए। अल्लाह आपसे मतलब जो है राज़ी हो और मतलब जो है आपको एहसासन बनाए और इसका अजर मतलब जो है वालिदैन को भी दें। इसके लिए भाई हम सबको मुबारकबाद देना चाहते हैं कि आज अल्हम्दुलिल्लाह एक काम है मतलब और हम सबके दरमियान में सबको मुबारक हो और सबको अल्लाह इसके अजर से नवाज़े। जो दुआएँ की गई हैं अल्लाह उसको कबूल फरमाए। और इसके अलावा आज से मतलब जो है लैलतुल क़द्र का मतलब जो है रात शुरू होने जा रहा है और इसमें यह है कि हम तलाश करें आज से लेकर के 10 दिनों के अंदर में 21 रात को है, चाहे 22 हो, 25 हो या 29 हो। और इसमें एक बड़ा काम जो है जो कि सब आज ऐलान भी हुआ था मस्जिद में एतकाफ़ के सिलसिले में, तो हमारे जाकिर भाई ने इरादा किया है कि आज से वो मतलब जो है एतकाफ़ पे मतलब जो है बैठते हैं। अल्लाह उनके जज्बे को कबूल फरमाए। ये मतलब जो है पूरे गांव की तरफ से है, अल्लाह आपको इसका अजर दे और हम तमाम लोग मतलब जो है आपके इस अजर से हम भी मुस्तफ़ीद हों। जाकिर भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और खाली आप ही हैं और कोई हैं? जी अकेले यही हैं। हाँ, और ये हमारा फ़र्ज़ है कि मतलब जो है उनकी जो है जिम्मेदारी भी मतलब अगर कुछ ज़रूरत पड़ा तो हम करें इनका, तो अगर ज़रूरत हो तो किसी तरह का, तो ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह आपके जज्बे को कबूल फरमाए। पूरे गांव की तरफ से आप यानी आप करने जा रहे हैं और अल्लाह इसका अजर दे। बाकी बातें जो है हाफिज़ परवेज़ साहब बताएंगे।
सबको जो है मुख्तसर तौर पर बयान किया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह ताला इनकी बातों को कबूल फरमाए। आमीन। मुख्तसर बात हमारे मौलाना गुफरानी साहब सलमान इमाम भी है, माशाअल्लाह इन्होंने तरावी वहाँ पर आए हैं और सबको ये खत्म कर दिया है। इसी में गुजारिश को मुख्तसर बयान किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अमर सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फ़ज्र। कौन सी रात थी? वो लैलतुल क़द्र की रात थी। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि हमने कुरान मुबारक को लैलतुल क़द्र में उतारा। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातब है, कह रहे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको मालूम भी है कि लैलतुल क़द्र क्या है? क्या कह रहे हैं अल्लाह? वमा अदराका, आपको मालूम भी है लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र क्या है? आगे फरमाया लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, लैलतुल क़द्र वो रात है जो 1000 महीनों से अफजल है। लैलतुल क़द्र की रात 1000 महीनों से अफजल है। और सिर्फ रात ही अफजल नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी इस रात की खुसूसियत यह है कि आगे खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद इस सूरह के अंदर फरमा दिया तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा, कि वह मुबारक रात है जिस मुबारक रात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्ते को दुनिया के अंदर नाज़िल फरमाते हैं। आसमान से फरिश्ते उतरते हैं, रूह उतरती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन फरिश्तों को भेजते हैं ताकि वो दुआ कबूल, जो दुआ बंदा करे उसके लिए उसकी दुआ को कबूल करे और इन बंदों के लिए दुआएं मग़फ़िरत करे। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से अम्र और सलामती को लेकर के दुनिया के अंदर उतरते हैं। और ये उतरते हैं रात में तो सुबह तुलू होने तक दुनिया के अंदर कायम रहते हैं और लोगों के लिए मग़फ़िरत करते रहते हैं। मेरे भाई, ये रात मग़फ़िरत की रात है। इस रात में दुआएं कबूल होती है। फरिश्ते आते हैं, मोमिन बंदों से सलाम, मोमिन बंदों को सलाम करते हैं, उनसे मुसाफा करते हैं, उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं और उनकी दुआओं पर आमीन कहते हैं। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस रात के बारे में कि जिस शख्स ने शब कदर की रात पाई और ईमान के साथ सवाब की नीयत से इबादत की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। ये इनाम है इस रात के लिए। ये इनाम है उन लोगों के लिए जो इस रात को जागते हैं और अपने रब को याद करते हैं, इस रात में ज़िक्र व अस्कार करते हैं। ऐसे लोगों के लिए इनाम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके पिछले तमाम गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। रमज़ान का महीना इबादतों का महीना है, बहुत पाक महीना, अल्लाह से सीधे जुड़ने का महीना। इस महीने की अपनी बरकतें हैं, रहमतें हैं, मग़फ़िरत का महीना है। और सिर्फ रोज़ा रखना और सहना ही नहीं, उसके साथ बहुत सारी बातें जुड़ी हुई हैं। सिर्फ रोज़ा रखने और सहने का नाम ही रमज़ान नहीं है। इफ्तारी, सहरी के साथ साथ दूसरी तरह की बातें, तरावी, सहरी, इफ्तार करना, रोज़ा खोलना, ज़कात, फ़ितरा निकालना और भी बहुत से हर कदम पर इबादत की जा सकती है। इसे शायद थोड़ी देर के लिए लफ्ज़ों में बयां भी नहीं किया जा सकता है। इस महीने की बाबरकत महीने की जो फजीलतें हैं, बस ये कहा जा सकता है कि अल्लाह से रुजू करने का, अल्लाह से सीधे संवाद करने का ये महीना है और ये रिश्ता जोड़ता है लोगों से और अल्लाह से रिश्ता जोड़ने का महीना। और अल्लाह कहते हैं कि इसमें दुआएं मांगा करो, मग़फ़िरत की दुआएं मांगा करो। सच भी ये है कि अल्लाह माफ़ करने वाला है, उन्हें माफ़ी पसंद है और वो उनसे माफ़ी मांगना चाहिए।
माफ़ करे और बस इस महीने की बरकत वाले महीना में बस ये कि हम एक बने, नेक बने, सच्चे बने और अच्छे बने।